अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ऑनलाइन सट्टेबाजी की लानत की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील देंगे। ऑनलाइन गेम्स और दीगर ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई में लाई जाएगी तेजी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में किया ऐलान। इंदिरा राज में तेलंगाना मुश्किलात में घिर गया। अवामी हुक्मरानी तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर हुई। आबपाशी का पानी बंद हो गया। ज़राअत मुतासिर। साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। कहा हुकूमत कमीशन सरकार है। आखिर पुराने शहर से इतनी नफरत क्यों की जा रही है? ज़ू पार्क मुंतकिल करने की कोशिशों पर मजलिस के लीडर अकबर ओवैसी की हुकूमत पर तनकीद। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रिटायर्ड एहलकारों के वफ़द से की मुलाकात। मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। और ज़ालिम इसराइली फौज ने मुसलसल 90 दिन भी गजा पट्टी पर जारी रखे हमले। मजीद 12 फ़लस्तीनी हुए शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी की लानत की तहकीकात के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी जाएगी जो रियासत में गरीबों के खानदानों को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर CBCID को भी शामिल किया जाएगा। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के मौके पर खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस तरह के ऑनलाइन बेटिंग गेमिंग ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। అదేవిధంగా ఆన్లైన్ రెమ్మీ వీటికి సంబంధించిన విషయాల మీద కంటిన్యూస్గా సభలో చర్చ జరగడం, బయట ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులు ఉండడం, సిద్దిపేట శాసనసభ్యులు హరీష్ రావు గారు ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ మీద, అదేవిధంగా ఈ బెట్టింగ్ యాప్ల మీద, ఆన్లైన్ రమ్మీ గేమ్ల మీద ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి. పేదలకు తీరని నష్టం జరుగుతుంది. పేదలు బెట్టింగ్ యాప్లతో బలవుతున్నారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు, రకరకాల ఆందోళనలు చేపట్టడం జరిగింది, మాట్లాడడం జరిగింది. అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వమే 2017లో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ ఆన్లైన్ యాప్ వీటన్నిటి మీద నిషేధం చేస్తూ చట్టం తీసుకొచ్చింది. చట్టం చేశాం కానీ దాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేసే విషయంలో మరి గత ప్రభుత్వంలో కొంత నిర్లక్ష్యం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో అది చాలా వేగంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుర్వినియోగం జరుగుతుంది. అందుకే అధ్యక్ష తమ ద్వారా ఇది పక్క రాష్ట్రాలు, దేశము, ఇతర దేశాలు ఈ నేరం ఒక రకంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మొదలు పెడితే అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు వివిధ రకాల సంస్థలు, వ్యక్తులు, రకరకాల దేశాలకు సంబంధించిన నేరగాళ్ళు అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నారు. ఇది ఏదో టెంపరీగా ఒక పోలీస్ స్టేషన్లోనో లేకపోతే ఒక పరిధిలో మనం విచారణ చేస్తే దీనికి ఈ సమస్యకు సమూలమైన పరిష్కారం కనుగొనే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ ఆన్లైన్ ఈ యాప్లు కానీ లేకపోతే ఆన్లైన్ రమ్మీ లాంటి గేములు డిజిటల్లీ ఈ గేమింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ప్రధానంగా బెట్టింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో దీని పట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వము అప్రమత్తంగా ఉండాలి, కఠినంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నది. అధ్యక్ష నేను ఎవరి మీద ఆరోపణలు లేకపోతే ఎవరు ఏ పరిస్థితిలో వీటిని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనుమతించారు, ప్రోత్సహించారు ఎక్కువ వివరాల దగ్గర నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా బెట్టింగ్ యాప్లు కానీ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కానీ ఆన్లైన్ రమ్మీ గేమ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండడమే కాదు కఠినంగా వ్యవహరించాలని ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. దీన్ని నిరోధించడానికి, నిషేధించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం, వీలైతే CBCID కానీ లేకపోతే అధికారులతో సమీక్ష చేసిన తర్వాత ఒక స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీంని వేసి కఠినంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. అధ్యక్ష BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और कहा कि इंदिरा राज में तेलंगाना मुश्किलात में घिर गया। अवामी हुक्मरानी तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर हुई। आबपाशी का पानी बंद हुआ और ज़राई काश बुरी तरह मुतासिर हो रही है। KTR ने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने के इक़्तिदार में सरसब्ज़ के तबाह हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन भगीरथ के जरिए घरों तक फराहम किया जाने वाला पीने का पानी अब दोबारा बोरवेल, कुओं और टैंकरों पर मुनहसर हो गया है। KTR ने हुकूमत को कमीशन सरकार करार देते हुए इल्ज़ामात आयद किए। अध्यक्ष మరి నేను అనలేనా అధ్యక్ష ఓటుకు నోటు దొంగ ముఖ్యమంత్రి
20% కమిషన్లు 30% కమిషన్లు మీ ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు. నేను అనలేను అధ్యక్ష ఈ మాటలు. జడ్చర్ల శాసనసభ్యులు అనిరుద్ధ్ రెడ్డి గారు 30% కమిషన్ అని మాట్లాడినారు. దాని మీద చర్య తీసుకోమని రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారిని అడిగాను. 20% కమిషన్ అని కాంట్రాక్టర్లు ధర్నా చేస్తున్నారు సెక్రటేరియట్ లో, చర్య తీసుకోమని అడిగినాను. మరి నేను అనొచ్చు కదా అధ్యక్ష, పిసిసి అధ్యక్ష పదవిని 50 కోట్లకు కొనుక్కున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి అని చెప్పి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నేను అనొచ్చు కదా अध्यक्ष। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी और साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR के बीच आज गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। KTR की जानिब से हुकूमत को कमीशन सरकार करार देने पर डिप्टी CM भट्टी गुस्सा हो गए। उन्होंने KTR और साबिक़ा BRS और हुकूमत पर तनकीदें की। बहस के दौरान KTR ने सवाल किया था कि क्या यह हकीकत नहीं है कि सिगरेट के सामने कॉन्ट्रैक्टर्स ने 20% कमीशन के मुतालबे पर एहतजाज किया। इस पर भट्टी ने नामुनासिब रिमार्क करते हुए कहा कि समझदारी से बात करें और एहतियात करें। मैं सिंसियरगा मिम्मल्नि प्रार्थिस्तुन्नानु सर, దయచేసి రికార్డులు తెప్పియండి. ఎన్నిసార్లు ఇంటరప్షన్లు అయినాయి, ఎన్నిసార్లు మంత్రులు అంత 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 ఎక్సైట్ అయ్యి మాట్లాడితే ఎట్లా సార్ మంత్రులు? సార్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, దయచేసి కొత్త సభ్యులు కాంగ్రెస్ నుంచి 53 మంది ఉన్నారు. ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ద బ్యూటీ ఆఫ్ డిస్కషన్ ఇన్ అసెంబ్లీ సార్ ఇస్ డిస్కషన్, డిబేట్, డిసెంట్. సార్ అపోజిషన్ అనేది మాకు వి విల్ హ్యావ్ అవర్ సే, ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ వే. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. దయచేసి నేను వారిని మిమ్మల్ని కూడా కోరేది సార్, మంత్రులకి సంయమనం ఉండాలి, రిస్ట్రెయింట్ ఉండాల్సింది ట్రెజరీ బెంచెస్కి. అపోజిషన్ సహజంగానే మేము ప్రభుత్వం చేయని పనులు, ఇస్తానని చెప్పిన మాటలు, హామీలు కాని హామీలు మేము దయచేసి ప్రకాష్ స్పీకర్ గారు ఒకటే రిక్వెస్ట్, మంత్రులకి మీరు దయచేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు మేము కూడా ప్రొవోక్ చేయాలనుకుంటే మేము కూడా మాట్లాడొచ్చు సార్. మేము కూడా చెప్పొచ్చు 30% కమిషన్ అని వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు, 20% కమిషన్ అని సెక్రటేరియట్ లో ధర్నాలు అవుతున్నాయి. డిప్యూటీ సీఎం గారు సార్, రామ్జాన్ మీరు కూర్చోండి, డిప్యూటీ సీఎం గారు మాట్లాడుతున్నారు సార్. ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ, చాలా సంతోషం కేటీఆర్ గారు లేచి చాలా గౌరవంగా మాట్లాడతాడని నేను ఊహించాను, ఓ సభ్యతగా మాట్లాడతాడని కూడా ఆశించాను. లేచి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష? ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీలో డిస్కషన్ ఉండాలా, డిబేట్ ఉండాలన్నారు. సంతోషం. డిస్కషన్, డిబేటు వాస్తవంగా ఉండాలా, లేచి మాట్లాడిన ప్రతి మాట అబద్ధంగానే మాట్లాడాలా? వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? యు ఆర్ నాట్ మిస్గైడింగ్ ద హౌస్, నాట్ ఓన్లీ ద హౌస్, ది ఎంటైర్ స్టేట్ యు ఆర్ మిస్గైడింగ్. వారు ఏమన్నారండి? అభయహస్తం పేరు మీద అడ్డగోలుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇచ్చామని చెప్తా ఉన్నాం. సివిల్ సర్వీస్ స్టూడెంట్స్ కోసం మన రాష్ట్రం నుంచి పోతున్నటువంటి విద్యార్థులకి, పేద మధ్యతరగతి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులకి, ఇంక్లూడింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్స్ కూడా, ఎవరైనా ఈ రాష్ట్రం నుంచి భారతదేశంలో నడుపుతున్నటువంటి యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కోసం డబ్బులు లేకుండా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే వాళ్ళకు కొంచెం ప్రోత్సహిద్దామని చెప్పి మేము ప్రిలిమినరీ పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళందరికీ, ప్రతి అభ్యర్థి ఎవరు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళందరూ ₹1,00,000 ఇద్దామని చెప్పాం. మెయిన్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంటర్వ్యూకి పోతా ఉంటే ఢిల్లీకి పోయి ఆడ ఉండటానికి, కోచింగ్ తీసుకోవడానికి ఎంతో కొంత సాయం చేస్తే కొద్దిగా ఎక్కువ మంది ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యి మన రాష్ట్ర విద్యార్థులు వస్తే రాష్ట్రానికి గౌరవం, కొంత మర్యాద, కొంత భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగపడతారని వాళ్ళకు ₹1,00,000 ఇద్దామని చెప్పాం. ఇది మంచి పథకం కదా అధ్యక్ష? ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దిస్? ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేటే కదా చేసింది. చేసిన దానికి మీరు 4 కోట్లు చేశారు, 40 కోట్లు అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నాను పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారిని, అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు చూసారా? ఇచ్చామో? ఇది ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ మిస్గైడింగ్ ద హౌస్? కాంట్ డూ లైక్ దిస్. అధ్యక్ష వారు లేచి ఇంకో ఆయన లేచి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు. ఏమండి 30% తీసుకున్నారు, కమిషన్ తీసుకున్నారు అన్నమాట. ఎవరండి 40,000 కోట్ల రూపాయలు పనులు చేపించి బిల్లులు ఇవ్వకుండా రాష్ట్రం మీద 1,00,000 కోట్ల పైబడి అప్పులు చేసి మీరు పోతే వాళ్ళందరూ బిల్లులు రాక నానా బాధపడుతూ రాష్ట్రం కోసం అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి సెకండరీ చుట్టూ తిరిగి నానా బాధపడుతున్నారు. మీ పాపం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్రంలో 1,00,000 కోట్ల పనులు చేసినటువంటి వాళ్ళ బిల్లు లేక ఏడుస్తున్నారు. ఎంతో కొంత మేము బాగు చేసి కొద్ది సర్ది చేసి ముందుకు పోతా ఉంటే అడ్డగోలుగా మీరు ఈ మాటలు మాట్లాడటం ఇది వాస్తవమా? రైట్, నేను ఛాలెంజ్ చేస్తా ఉన్నాను కేటీఆర్ని. ఐ హావ్ ఛాలెంజ్ కేటీఆర్. నౌ యూ హావ్ టు ప్రూవ్ దట్ వాట్ ద స్టేట్మెంట్ వాట్ యు మేడ్. అదర్వైజ్ యూ హావ్ టు సే అపోజిట్ టు దిస్ హౌస్. యూ హావ్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్. అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్నాను.
बीआरएस के अरकान असम्बली ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी सीएम हटी विक्रमार्क बीआरएस के वक्त नज़र केटीआर के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। इस मुतालबे को लेकर बीआरएस अरकान असम्बली ने नारेबाजी करते रहे। असम्बली इजलास के दौरान केटीआर और भट्टी के दरमियान बहस हुई, जिस पर डिप्टी सीएम के रिमार्क पर बीआरएस अरकान ने एतराज़ किया और कहा कि नाज़ेब अल्फाज हैं, इस पर डिप्टी सीएम को माफ़ी मांगना चाहिए। इस मामले को लेकर अरकान असम्बली बीआरएस ने असम्बली के दाखिली दरवाजे पर धरना दिया और कमीशन सरकार के इल्ज़ामात को दोहराया। चन्नाईगुट हैदराबाद के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी ने हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और सवाल उठाया कि आखिर पुराने शहर से इतनी नफरत क्यों जा रही है। उन्होंने खासतौर पर जू पार्क और दीगर अहम मकामात को पुराने शहर से मुंतकिल करने की कोशिशों पर एतराज़ात किए। अकबर ओवैसी ने हुकूमत से वजाहत तलब की और कहा कि पुराने शहर को मुसलसल नज़रअंदाज करना और यहाँ की तारीखी और तफरीही जगहों को ख़त्म करना नाकाबिल कबूल है। इस दौरान रियासती वज़ीर डी श्रीधर बाबू उठ खड़े हुए और कहा कि हमारा मानना है कि पुराना शहर ही दरअसल असली शहर है और यकीन दिलाया कि कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। एंड डेवलप क्यों बनाना चाह रहे हैं सर? ये अच्छा खासा है ना सर, क्यों नया बनाना चाह रहे हैं? आप जो नया जू बनाना चाह रहे हैं ना सर, वही पैसा कल्याण लक्ष्मी पे खर्च हो, आप शादी मुबारक पे खर्च हो, आपके 6 गारंटीज पे खर्च हो सर। ये काफी है सर। ये जू ये ओल्ड सिटी से सर इंसान तो रह नहीं सक रहा है। अब कैसा भी जानवर रह रहे हैं सर, उनको भी लेके चले जाएंगे तो कैसा होगा सर? सर वो तो रहने दीजिए सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट करूंगा सर। एट द सेम टाइम तो वहां पे क्या है मैडम, वहां नहीं है। आप देखिए परसों चीफ मिनिस्टर साहब अच्छा फ्लाईओवर करे ना, वो उसके बाद में पीवी एक्सप्रेस वे है। अगर आप सर बंजारा हिल जुबली हिल से अगर आप जू को पहुंचना चाहते हैं सर, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स सर। इट्स माई चैलेंज सर, 15 to 20 मिनट्स। तो सिटी एक्सपेंशन के नाम पे क्या आप ओल्ड सिटी से सब कुछ खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे? क्या ये नफरत, ये गुस्सा इस वजह से है कि पुराने शहर में मुसलमान बसते हैं, रहते हैं? क्या इस तरीके के लिए क्या आप सब कुछ छीन लेंगे? जू चला गया, हाई कोर्ट चला गया, उस्मानिया चला गया, पुलिस कमिश्नर ऑफिस चला गया, सब कुछ चला गया सर, सब चला गया तो कैसा होगा सर? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जू को रखिए, उसको इंप्रूव करिए। अब ऐसा करेंगे और थोड़े दिन के बाद बोलेंगे सर जू जाने के बाद क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा सर नहीं अकबर साहब, सालारजंग म्यूजियम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सिटी। और हमारे सीता का बोलेंगे अकबर साहब सालारजंग म्यूजियम भी सिटी एक्सपैंड हो रहा है, उसको हम हाईटेक सिटी लेके चले जाएंगे। कैसा ऐसा होगा सर? कैसा होगा ऐसा बोलो आप? क्यों इतनी नफरत? क्यों इतनी नफरत? मैं कहना चाहता हूं पुराने शहर में, अरे पुराने शहर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर कोई रहते हैं। Sir, that's the real reason I would like to bring to the notice of our learned friend Akbar Saab ko. Sir, we classified old city as the original city, sir. It's the extension of that old city, that's the original city. Nothing more we are doing it, sir. Whatever he's been specifying on the zoo thing, we'll have a, talk with you, we'll have a discussion with all the stakeholders. And we have highest respect for the citizens who are staying in the old city. And we are taking up all the development works required after 10 years of the Telangana formation. Our focus and our perspective towards the old city and the original city, you will only see the qualitative difference after a few years. This is our word and we are working for it, Adhyaksha. सर चिरान पैलेस कासू बर्मान रेड्डी पार्क के नाम से है, उसको भी डेवलप करने की बात करूंगा। कल हमारे मिनिस्टर साहब ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी कहा है कि वो लैंड को नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बट आई वुड से कि सर यू शुड कॉल फॉर अ मीटिंग एंड यू टॉक टू द स्टूडेंट्स ओवर देयर, दे आर स्टिल एजिटेटिंग एंड द मैटर इज सब जुडिस आल्सो। आई डू नॉट वांट टू से मच ऑन दैट। सर कोर्ट में भी चले गए हैं बचाने के लिए। तो फाइनली व्हाट आई वांट टू से इज दैट सर कि हमको हमारे शहर को बचाना है, ग्रीन बेल्ट को इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट कवर को और इजाफा करना है और हमको हमारे शहर को खूबसूरत करना होगा, न सिर्फ लेक्स को प्रोटेक्ट करते हुए, लेक्स को क्लीन करते हुए, ग्रीन कवर को बढ़ाते हुए। सर
बीआरएस एमएलसीज ने कांग्रेस हुकूमत को उनके वादे याद दिलाते हुए कौंसिल में सोने की अलामती ईंटों के साथ अनोखा एहतजाज किया। बीआरएस लीडर कविता की क़यादत में एमएलसीज बीआरएस तेलंगाना काउंसिल पहुंचे और कांग्रेस हुकूमत को उसके इंतखाबी वादे को याद दिलाने के लिए सोने की नकली ईंटें दिखाई। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि वो शादी के वक्त तेलंगाना की खवातीन को 1 तोला सोना देगी, लेकिन हुकूमत बनने के बाद इस वादे पर अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर बीआरएस ने शदीद एहतजाज किया और कविता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को इस मामले पर बयान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने वादा किया था और उन्हें तेलंगाना का दौरा भी करना चाहिए। During the Telangana general elections, Congress government, especially Sonia ji, had come to Telangana and given 6 guarantees. One among the 6 guarantees is to give 1 tola sona, that is 10 grams gold, for the young women who will be getting married, along with the 1 lakh rupees check for the Kalyan Lakshmi scheme that was earlier started by BRS government and KCR Garu. After coming to the power, Congress government has grossly ignored this promise, and there are checks that have been given. Although delayed, the checks are being given, but 10 grams gold promise has not been fulfilled. So we demand, Honorable Sonia ji, because it is for you who Telangana women have voted, not looking at the local leaders, we demand Sonia ji come to Telangana, direct her government to immediately fulfill the promise of 10 gram gold. Thank you. Jai Telangana. बीआरएस की जानिब से बहादुरपुरा असम्बली हल्के में खवातीन की दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया। असम्बली हल्के के बीआरएस इंचार्ज इनायत अली बाकरी की निगरानी में मुनक़िदा इस दावत अफ्तार की खसूसियत गंगा जमनी तहजीब की मिसाल थी। दावत अफ्तार में बीआरएस पार्टी की गैर मुस्लिम खवातीन ने रोज़ादार खवातीन के लिए अफ्तार का एहतमाम किया। इस मौके पर साबिक़ा रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर के लिए आयशा शकील और मीर इनायत अली बाकरी ने भी मीडिया से बातचीत की। तो सभी को रमज़ान मुबारक मेरी तरफ से, खुसूसन बहादुरपुरा की लेडीज़ जो नॉन मुस्लिम होते हुए मुस्लिम लोगों के लिए इतना प्यार से, इतनी मोहब्बत से सुबह से शाम तक अपने वक्त के साथ साथ हर एक चीज़ लगा के जिस तरह से इन्होंने मेहनत करके इफ्तार की यहाँ पर दावत की है, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और अली बाकर भाई जो मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देखिए, गंगा जमुना तहजीब सिर्फ तेलंगाना में देखने को मिलेगा, वो भी हमारा तेलंगाना हासिल होने के बाद, यानी कि हमारे केसीआर साहब वो तो हमारे लिए अभी भी सीएम है, चाहे सीएम कोई भी बैठे हमारे दिल में। तो देखिए, मोहब्बत दिल से आना चाहिए। आज भी हर किसी के दिल में सीएम का नाम यानी कि केसीआर साहब का ही नाम आता है। क्यों? दिल से जब कोई काम करता है तो इंसान दिल पे हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, चाहे वो कुर्सी का मोहताज कोई नहीं होता। दिल से काम करने से दिल में चढ़ा हुआ रहना हमारे केसीआर साहब ने हमको सिखाया है और वही तहजीब हम लेकर चल रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने हम औरतों को बहुत धोखेबाज, बहुत धोखे वाले बातें करके, वादे करके जो पूरा नहीं किए। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक इफ्तार पार्टी मुनक़िद की गई, जिसको हमारी तमाम हिंदू बहनों ने सवेरे से ही अपने इंतज़ाम करते हुए यहाँ पर मेवे की फराहमी के लिए तमाम काम करे। और इसके अंदर ख़ुसूसन क्या था कि आज हमारे तेलंगाना जागृति की सदर और बीआरएस की एमएलसी कविता मैडम आज मेहमान खुसूसी थे, क्योंकि इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से वहाँ पर वो आ नहीं सके। इसीलिए क्योंकि हम हमेशा इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, उसी के लिए आज उनकी जगह पे हमारे आयशा मैडम जो बोधन के इंचार्ज है, जो हमारे एमएलए साहब की रोजा है, और मैं उसके तरफ से तमाम हिंदू बहनें और मुसलमान बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर आकर ये सबूत दिया कि हैदराबाद शहर एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान एक भाई की तरह हमारी बहनें, हिंदू बहनें और हिंदू बहनों को जो मुसलमान बहनों के लिए दावत का एहतमाम किया गया है, ये नाकाबिल फरामोश है और इससे तमाम हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। तभी जाकर तो ये केसीआर साहब की रखी हुई बुनियाद पर आज हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म आज सांस ले रहा है। साउथ के अंदर एक बड़े पैमाने पर आज भी गंगा जमुना तहजीब मौजूद है। दखनी तहजीब के नंबरदार और स्टेज की दुनिया के अजीम मज़ाहिया फ़नकार दौलत राम गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 साल थी। कुछ अरसे से वो अलील थे। दौलत राम हैदराबाद की अदबी और तहजीबी महफिलों में मकबूल थे। वो उर्दू ज़बान के शहदाई थे और हैदराबादी लहजे में मज़ाहनिगारी में महारत रखते थे। उनका शहर के क़दीम तहजीबी अंजुमन फ़ाइन आर्ट्स अकेडमी से भी गहरा ताल्लुक़ था। वो फ़तेह मैदान क्लब के मुअज़्ज़िज़ रुकन भी थे और सियासी और समाजी हलकों में उनका काफ़ी मशहूर नाम था। सियासत मिलत फ़ंड की जानिब से लावारिस लाशों की तदफीन का काम जारी है। मज़ीद 11 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद इनकी तदफीन अमल में लाई गई और इस सिलसिले में मीडिया को तमाम तर तफसीलात से आज आगाह किया गया। अस्सलाम वालेकुम।
सिकंदराबाद की रहने वाली खातून बुशरा तबस्सुम साहबा और उनके शौहर सैयद अब्दुल मन्नान जो अक्सर कफन मुहैया करते हैं, उन्होंने कहा कि मौत एक बेहतरीन नेमत है जो परवरदिगार से मिलने का वाहिद जरिया है। मिसरीगंज के जनाब मोहम्मद अब्दुल खदीर साहब, फ़हीम सुल्ताना के अलावा आरिफ भाई ने कहा कि रमज़ान में मौत हो और इनकी तदफीन ताख़रात में हो तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जनाब मोहम्मद हाशम साहब ख़तीब मस्जिद मामा नेक ख़दम ने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़रत की और न सिर्फ इनके लिए दुआ की बल्कि इसमें ताउन करने वालों को यानी मिल्लत फंड में जिन जिन लोगों ने ताउन किया है उन सब के लिए भी उन्होंने दुआ फरमाई। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। मोहम्मद अब्दुल जलील ने विरसा के लिए दुआ की कि वो जहाँ भी हों अल्लाह पाक उनको सब्र अता फरमाए। मदराचल में एक खौफनाक हादसा पेश आया जहां पंचायत ऑफिस के करीब ज़ेर तामीर एक 6 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इस हादसे में वहां काम करने वाले मजदूरों में से 2 मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। JCB की मदद से मलबा हटाया गया। इब्तदाई जाँच में मालूम हुआ है कि इमारत का मालिक बगैर किसी कानूनी इजाज़त के ये तामीरात अंजाम दे रहा था। और बढ़ते हैं चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF के रिटायर्ड एहलकारों की एक वक्त से बातचीत की। उन्होंने वक्त के मुतालबात सुनने के बाद यकीन दिलाया कि मुसल्लह अफवाज के साथ इम्तियाजी सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल ने कहा कि मुल्क का हर सिपाही मुल्क की हिफाजत का पहरेदार है और उनकी खिदमात पर पूरी कौम को फ़ख्र है। मुसल्लह अफवाज के एहलकारों ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और उनकी फलाह बहबूद में कोई कोताही या इम्तियाज़ काबिल कबूल नहीं होगा। राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से मुख्तसर बातचीत की और कहा कि ऐवान किस तरह चल रहा है समझ में नहीं आता। वो जब भी किसी मसले पर बयान देना चाहते हैं स्पीकर उन्हें रोक देते हैं। उन्होंने भी कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। I don't know what is going on because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो बनाना पड़ा है। डिस्टर्ब किया था। आपके ऊपर कहा कि राहुल को मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है सर, उन्होंने ये कहा। मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक? मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दिया। और हम
हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। और बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। काबिज इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 90 दिन भी गज़ा पट्टी पर अपनी नई जारहियत जारी रखी और दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए। मुतादिद घरों और खैमों के अंदर मौजूद मकीनों को बमबारी से शहीद किया गया। गज़ा पट्टी में ज़ालिम फ़ौज की जारहियत की वजह से कम 12 फ़लस्तीनी आज सुबह शहीद हुए। इस तरह 24 घंटों के दौरान कुल 38 फ़लस्तीनियों की जान चली गई। काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने वस्ती गज़ा पट्टी में नसीरात कैंप पर भी बमबारी की। गज़ा पट्टी पर 18 मार्च मंगल की सुबह से मुसलसल हमलों के सिलसिले जारी हैं, जिसमें 800 से ज़्यादा शहरी शहीद हुए और 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के लीडर हुसाम बदरा ने कहा कि जालिम सहनी रियासत का फ़लस्तीनियों को जलावतन करने का मंसूबा नाकाम होगा। उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतन्याहू मुसलसल हमले कर रहे हैं और अमेरिका की इंतज़ामिया खुलेआम फ़लस्तीनी नस्लकुशी की पुश्तपनाही कर रही है। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये रिपोर्ट। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हुसाम बदरा ने कहा कि जालिम सहनी रियासत का फ़लस्तीनियों को जलावतन करने का मंसूबा नाकाम होगा। उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए तायीद का मिशन जारी रखेंगे। हमास कायद ने कहा कि हम जंग और खूनरेज़ी को रोकने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन काबिज इसराइल ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया और अपनी जंग का सिलसिला और जारहियत जारी रखे हुए है। उन्होंने निशानदही की कि अमरीकी फ़रीक सालिस नहीं है, बल्कि मुतासिर और कब्ज़े का हामी है। नेतन्याहू ने मुज़ाकिरात से इनकार कर दिया है। फ़िलहाल जो ख़यालात तजवीज़ किए जा रहे हैं वो नामुकम्मल है और हम जंगबंदी के मुआहदे की जानिब वापस आना चाहते हैं और जंग का फिलफौर ख़ात्मा चाहते हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहिमत हमास ने फ़लस्तीनी अवाम, आलम इस्लाम और दुनिया के आज़ाद लोगों से जुमा, हफ्ता और इतवार को गाज़ा, यरूशलेम और अल-अक़सा के दिफा में और काबिज इसराइली रियासत के जंगी जराइम के रद्द-ए-अमल में एहतजाज की अपील की। हमास ने अपने बयान में कहा कि काबिज सहयूनी दुश्मन की जानिब से उसकी वहशियाना जारहियत में इजाफे और गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जारी क़त्ल-ए-आम, मगरबी किनारे, बैतुल मुक़द्दस और मुबारक मस्जिद अक़सा में इसके जराइम के रद्द-ए-अमल में सामने आया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी बरादरी गज़ा में निहत्ते शहरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और अमरीकी इंतज़ामिया खुलेआम फ़लस्तीनी नस्लकुशी की और नेतन्याहू की पुश्तपनाही की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। ऑनलाइन सट्टेबाजी की लानत की तहकीक़ात के लिए ख़ुसूसी तहकीक़ाती टीम SIT तश्कील देंगे। ऑनलाइन गेम्स और दीगर ड्रग्स के खिलाफ भी कार्रवाई में लाई जाएगी तेज़ी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असम्बली में किया ऐलान। इंदिरा राज में तेलंगाना मुश्किलात में घिर गया। अवामी हुक्मरानी तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर हुई। आपाशी का पानी बंद हो गया। ज़राअत मुतासिर। साबिक़ा रियासत वज़ीर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर लगाए इल्ज़ामात। कहा हुकूमत कमीशन सरकार है। आखिर पुराने शहर से इतनी नफरत क्यों की जा रही है? ज़ू पार्क मुंतकिल करने की कोशिशों पर मजलिस के लीडर अकबर ओवैसी की हुकूमत पर तनकीद। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रिटायर्ड एहलकारों के वफ़द से की मुलाकात। मसाइल हल करने का दिलाया यकीन। और ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 90 दिन भी गज़ा पट्टी पर जारी रखे हमले। मज़ीद 12 फ़लस्तीनी हुए शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।